prevalent in our country since we became independent, and these issues were there even before that. And we all know these issues are there. Our main concern is here to actually try to understand that what are the reasons, what are the factors which contribute to these things in our society. I'll try to flag a few so that we can rather discuss this issue in detail and try and understand it more closely. The basic, to my mind, one basic reason is our conduct in the public sphere. Because all these issues or many such issues are created because of certain problems with our conduct in the public sphere. That is when we get out of our house in the morning and do things which affect the lives of other fellow human beings. Now, I am basically concerned about our deliberate actions, because there would be a lot of inadvertent, actions on our part. But for example, say I'm a teacher. So I know that if I go and teach sincerely in my class, it would be good for my students. And if I don't go to the class at all, that is something which I'm not supposed to do. So if I'm not going to my class, it is something very deliberate, or otherwise also. So the point basically is that there are certain things which I'm doing very consciously, very deliberately, and I also know the consequence of the actions also. मतलब जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैं इंजीनियर हूं, तो मैं खराब पुल बना रहा हूं, तो मुझे पता है कि पुल जो है वो ठीक से नहीं बना है, इसमें जो मटेरियल लगना चाहिए वो नहीं लगा है, और उसका कॉन्सिक्वेंस बुरा हो सकता है. और अगर मैं पूरी ईमानदारी से बनाऊंगा तो पॉसिबिलिटी या मतलब it's certain that it will last relatively longer and it will be good. So therefore, what happens that both these things, both these kinds of actions are very deliberate. Now what happens that when we act in the public sphere, मतलब I'm trying to argue basically that people are not primarily good or bad. जो हमारा अक्सर एक assessment होता है कि लोग बुरे हैं, फला लोग बुरे हैं या फला लोग अच्छे हैं, या एक्चुअली हम जनरली कहते हैं हिंदुस्तान में लोग बुरे हैं और हमारे यहाँ लोग बड़े कम्युनल हैं, कास्टिस्ट हैं, और ये सारी बायसेस हैं, और हम वहां गए थे वेस्ट में, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां के लोग ऐसे नहीं हैं. तो मतलब आई एम ट्राइंग टू आर्ग्यू दैट बेसिकली इट इज नॉट दैट पीपल आर गुड और बैड, इट इज the situation or the circumstances which many a time forces us to be like that. तो बेसिकली मतलब अगर आप ब्रॉडली देखें, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, व्हेन वी आर एक्टिंग इन दिस पब्लिक स्फीयर, दिस इज अ सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर जनरली स्केर्स. हमारे जैसे मुल्क में कहीं भी आप हो, रिसोर्सेज स्केर्स हैं, लोग ज्यादा हैं. If we go to a so-called developed country in the West, usually resources are more and people are less. Matlab broadly speaking. Now, this situation where we are living, this can be called as a situation, जिसको आप कह सकते हैं politics of scarcity. A situation where resources are scarce and people are more. And broadly speaking, वहां की situation को आप कह सकते हैं it's a politics of plenty. Now what happens that in societies like ours, where there is politics of scarcity, we are always having some kind of a fear in our minds about resources. जैसे for example, especially in the middle classes, जैसे इंसान के दिमाग में फियर होता है कि साहब मुझे नौकरी मिल गई, पता नहीं मेरे बच्चों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कोई भी रिसोर्स है, हर जगह लोग बहुत हैं और चीजें कम हैं, तो हमेशा आपके दिमाग में एक फियर होता है कि हमें वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी. और उसका नतीजा क्या होता है कि वी टेंड टू सर्च फॉर शॉर्टकट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स यू आर ऑल मैच्योर पीपल, लेकिन हम लोग टीचर हैं तो अक्सर क्लास में वी टेंड टू गिव एग्जाम्पल्स. जैसे होता है ना कि आप किसी स्कूल की लाइन में खड़े हुए हैं
मतलब आपके शहर में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है? क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारा बच्चा जब वहां पढ़ेगा तो जिंदगी की कामयाबी तभी है जब वो शहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सबसे अच्छा माना जाता है उसमें पढ़ेगा। तो हम गए, सुबह में लाइन में लगे हुए हैं स्कूल की, और देयर आर 2000 people standing in a queue early in the morning to take the form for admission to class, say infant or KG, and we all know that there are just 300 seats. So what happens that we are all insecure, and this is a situation, hypothetical situation, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। हम सब लाइन में खड़े हैं और कोई आदमी आके मेरे कान में कहता है कि सर ऐसा है कि आपको पता है यहाँ 2500 लोग खड़े हुए हैं और एडमिशन जो है वो तो 250 ही है सिर्फ इस स्कूल में, तो अगर आप कुछ पैसे वैसे खर्च करें तो आपके बच्चे का दाखिला हो जाए। तो क्या होगा? आई एम अ लॉ अबाइडिंग पर्सन, आई एम नॉट एंटी नेशनल, आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, आई टीच पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो एंड मे बी सिविक्स एंड मॉरल साइंस, बट बच्चे की मोहब्बत में आई एम टेम्प्टेड। मैं नहीं तो मेरे से 5 लोगों में से एक तो कोई टेम्प्ट हो ही जाएगा कि हाँ ठीक है यार, क्या परेशानी की बात है, मतलब एक बार ये गलती कर लेते हैं। वैसे हम कानून को मानते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, सब कुछ सही, लेकिन बच्चे की मोहब्बत में हमने उसकी बात मान ली। जो शॉर्टकट सेलर है, जिसको हम आम जबान में बहुत से पेजोरेटिव वर्ड्स उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको मिडिल मैन समझ लीजिए। और ऐसा होता है या हो सकता है कि उस 2500 की लाइन में उसको, उस आदमी को 4-5 लोग ऐसे मिल जाएं जो उसकी बात मान लें। तो ऐसा क्यों हुआ? हुआ इसलिए कि वी आर ऑल इनसिक्योर। अब हम में से कोई कहेगा साहब मैं तो स्वीडन में रहता था, वहां तो कोई ऐसी चीज होती नहीं। तो स्वीडन में होगी क्योंकि स्कूल के बाहर जो है 5 माँ बाप खड़े हैं, स्कूल में 20 सीट है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि स्वीडन के लोग बहुत अच्छे हैं और वो बड़े ऑनेस्ट हैं, या किसी भी एक्स मुल्क के, एंड दे आर वेरी नाइस पीपल, एंड पीपल इन इंडिया और से इन पाकिस्तान और बांग्लादेश आर वेरी बैड पीपल एंड दे टेंड टू डू करप्ट थिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बेसिकली ये दोनों सिचुएशंस क्या बता रही हैं कि मतलब हालात ऐसे थे जिसमें हम बहुत अच्छे इंसान होते हुए, हमारा कोई बेईमानी का इरादा नहीं, हम तो ईमानदारी से स्कूल में फॉर्म खरीदने गए थे, बट द सिचुएशन इज सच वेयर बाय यू आर क्वाइट ऑफन फोर्स्ड at different stages in your life and different matters of your life whereby you tend to do things like this. Anyway, this is just an example to take us to the real example which I would like to present before you. Now, this is a very innocent middleman. Now, there are bigger middlemen about whom I want to talk, and they are the political parties. Now, they are very clever people, very smart, very clever. They know our existential reality. They know the rather problems with us as far as our resources are concerned and how many people can get jobs in the country, what is the health sector like. हमें जो बातें हम बात करते हैं उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन हमसे कहीं ज्यादा, उन्हें सब मालूम। They know all this and they are there to vying for political power in the country. मतलब वो सब हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो आज वो पार्टी जीतेगी, कल तीसरी जीतेगी, परसों चौथी जीतेगी, वो उस गेम में है। उन्हें सारी चीजें बहुत अच्छी तरह पता है जो मुल्क की एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। उन सबको इलेक्शन भी लड़ना है और जीतना भी है। दे नो दैट दे कैन नॉट प्रोवाइड फॉर ऑल व्हाट वी नीड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ दिस इज द कंट्री हियर, आई नो दैट आई हैव ओनली 10 बिस्किट्स एंड देयर आर 50 पीपल सिटिंग हियर, सो ऑल ऑफ यू कैन नॉट गेट बिस्किट्स, मीन्स ऑल ऑफ यू कैन नॉट गेट जॉब्स, all of you cannot get medicines, all of you cannot get housing, all of you cannot get anything which is there in the country. We know fully well. So what we rather do now is that we try to enter a new game whereby we can satisfy you people also, make you happy, even maybe temporarily, and get your votes. Because this is a field. If we play this game here, we means all our political parties. मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हम सब अगर यहीं पे खेल रहे होंगे इसी मैदान में, और हम कोशिश करेंगे कि आपको रियल चीजें ये मिल जाएं, खाना मिल जाए, सबको रोटी मिल जाए, सड़क मिल जाए, पानी, मतलब जो भी चीजें, मेडिसिन, सब, तो वो कभी नहीं मिल पाएंगे। So we would be very naive and foolish to be playing the game here because we are bound to lose. All of us are bound to lose. So eventually what happens that we all of us, these political parties decide, of course उसकी कोई मीटिंग हमारी तरह नहीं हुई, लेकिन हम सब समझदार हैं, जिसको कहते हैं conspiracy of silence. We have not conspired, but actually there is a conspiracy whereby we all understand what is the rule of the game. Nobody asks when he enters the room. We all know. And you see when new political parties come in this game with a lot of idealism, eventually what happens that they understand what the game is. कुछ दिन में सब एक ही तरह हो जाते हैं, सब समझ रहे हैं।
तो ये अरीना क्या है, ये रियल इश्यूज का अरीना है, वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग यू political parties here, you all are expecting us to provide you with jobs, to provide you with food, with medicine, with all kinds of things which you need. Now we know that we can't give you these things. So what we do very intelligently, and we are these, we are the, अब आप उस मिडिलमैन को याद कीजिए जो स्कूल की लाइन में आपको मिला था, वो तो बेचारा बड़ा शरीफ आदमी था कि पैसा लेके कम से कम आपके बच्चे का दाखिला करा देगा। हमारा इरादा वो भी नहीं है, हम आपसे वोट चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं कि आप हमें पावर में लाएं या हमें पावर का मौका दें, लेकिन हमारा इरादा आपको कुछ देने का नहीं है, क्योंकि हम दे ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां सिचुएशन दूसरी थी, उसके पास 5 सीट थी, उसने 2500 में से 5 लोगों को बेवकूफ बनाया, जो भी करें उनको वो सीट्स भेज दी और पैसे कमा लिए, घर चला गया, काफी बेहतर आदमी था। यहाँ हमको पूरे मुल्क की जनता को बेवकूफ बनाना है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वो चीजें है ही नहीं जो हम आपको दें। इट्स नॉट दैट वी आर बैड पीपल primarily, but we can't give you those things which you want. So what we do is that we shift the discourse from this field to another field, which is known as the field of, जिसको कहते हैं pseudo issues और artificial issues और emotive issues आप कह सकते हैं। हम आपके लिए क्या करते हैं, आपको हम वो चीज नहीं देते बल्कि कुछ और चीज देते हैं, जिनको एक बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अर्नेस्टो लैटलाउ, उन्होंने कहा है empty signifiers. We don't give you jobs, we don't give you food, we don't give you medicines, we give you empty signifiers. Means things which appear to be very attractive and which appear to solve your problems, so actually they are nothing. लैटलाउ ने एग्जांपल दिया बलून का, जैसे गुब्बारा होता है ना, बड़ा खूबसूरत सा गुब्बारा हो तो छोटे बच्चों को हम गुब्बारा देते हैं, बच्चे को लगता है बहुत बड़ी सी चीज है, लेकिन एक्चुअली हमें आपको पता है कि वो कुछ नहीं, इतना बड़ा सा है, उसमें तो हवा भरी हुई है। द मोमेंट यू प्रिक इट, द एयर गेट्स आउट, but it's very attractive. So the political parties decide to give us those empty signifiers, things which appear to be very attractive, very beautiful, but inside there is nothing in. And what are these issues? They are emotive issues. And what are these emotive issues? These emotive issues connect to those very problems which we have. जो मैंने पहले जिक्र किया था, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, ये सारी पार्टीज जो एम्प्टी इश्यू बनाती हैं, ये एम्प्टी सिग्निफायर, वो किससे निकलता है? कम्युनलिज्म से निकलता है, या कास्टिज्म से निकलता है, या रीजनलिज्म से निकलता है, या लैंग्वेज से निकलता है। इन्हीं 4 में से निकलता है। किसी किसी का उसका एक मिक्सचर हो सकता है, किसी का एक्सक्लूसिवली एक हो सकता है। तो वो क्या करते हैं कि हमको इन्हीं चीजों के थ्रू, जो ये हम जिन चीजों के बारे में हम बड़े इमोशनल हैं, क्योंकि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी, हमारी कास्ट आइडेंटिटी, हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हमारी रीजनल आइडेंटिटी, उसी को वो प्ले करते हैं। और उसको मतलब जिसको मैं कह रहा हूं सीडो इशू, इसलिए इनको कहते हैं, फॉर दोज ऑफ यू नो ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू satisfy any of your real needs. So that's why they are known as artificial issues or pseudo issues, because they are telling you that if you bring us to power, we will satisfy this need. And what is that need? It, जिसको कहते हैं कभी वो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, धार्मिक अस्मिता, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका जो आपकी कास्ट है उसको ये मतलब उसको जो इज्जत मिलेगी, उसको गौरव मिलेगा, उसको अस्मिता मिलेगी, या जिस भी लैंग्वेज में उसको फ्रेम करें, और वो चीज हमें अट्रैक्टिव लगती है, हम उनकी तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? Why are we so easily attracted? ये बात तो बड़ी सिंपल लग रही है। If somebody is selling a communal issue, why are you attracted so easily? Actually, the selling of that communal issue is the same act as that of giving you a shortcut. What I am telling you actually is that this is a huge country, there are limited resources, everybody cannot get this resource. लेकिन अगर आप हमारे साथ आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं कम्युनल कार्ड खेल रहा हूं तो मैं कम्युनिटी से बता रहा हूं कि बाकी लोग तो बेकार है, लेकिन आप लोग सही है, अगर आप मेरे साथ आ जाएंगे तो मैं आपको, आपका काम हो सकता है, मतलब आपको ये बैकडोर या शॉर्टकट मिल सकता है, आप इधर आ जाइए। उसी तरह किसी कास्ट को मैं एड्रेस कर रहा हूं, उसमें रैशनैलिटी, लॉजिक, रिक्वायरमेंट का कोई जरूरत नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज विल कम एंड टेल यू दैट वी वांट टू गिव रिजर्वेशन टू योर कास्ट, व्हाटएवर कास्ट यू आर फ्रॉम, मे बी अ बिग ग्रुप हियर, यू ऑल नो दैट यू आर अ वेरी प्रॉस्पेरस कास्ट। आपको भी पता है, हमें भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है, लेकिन आपका नंबर इतना है कि हम समझ रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं। तो क्या होगा, हम आपको रिजर्वेशन ऑफर करेंगे और आपको भी कोई बुरा नहीं लग रहा है। यू आर ऑल्सो हैप्पी, ओके फाइन, इफ दे आर गिविंग अस रिजर्वेशन, यू विल नेवर से दैट द अदर पीपल आर नीडी और रिलेटिवली मोर नीडी, गो एंड गिव देम रिजर्वेशंस, नो, गिव देम टू अस। तो हम ऑलरेडी बहुत प्रॉस्पेरस हैं, और हो जाए कोई परेशानी की बात। तो
होता क्या है कि इस शॉर्टकट्स की गेम में सारी पॉलिटिकल पार्टीज दे ऑल क्रिएट देयर ओन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस and then they offer shortcuts. So everybody is selling shortcuts. It's not that one party is better than the other one. अब ये बात लगे कि इस इलेक्शन में किसी का कॉम्बिनेशन चल गया, वो जीत गया, दूसरी पार्टी नहीं जीती, लेकिन एक्चुअली दे आर ऑल ट्राइंग टू डू द सेम. द प्रॉब्लम बेसिकली इज दैट दे हैव बीन एबल, मतलब आजकल हम लोग बहुत कहते हैं कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा है. एक्चुअली कम्युनलिज्म के होने से पहले ही पूरा डिस्कोर्स जो है वो शिफ्ट हो गया था रियल इश्यूज के मैदान से सीडो इश्यूज के बाद. मे बी टिल yesterday or till some time back the main issue there was casteism. Today maybe the main issue is communalism. Somewhere in some region, some elections in some region of the country it is regionalism, but it would eventually be either of these issues or a combination of these issues. But none of those political parties will ever try to come to this field because this is a very quantitative field. ये फील्ड जो है बड़ी अजीब सी फील्ड है रियल इश्यूज की. उसमें ये कि आप 1 मिनट में टेस्ट हो जाएंगे, आपने कहा कि मुझे ये करना है, कल आप नहीं कर पाए तो आप इलेक्शन हार जाएंगे. दूसरा आ जाएगा, वो भी क्वांटिटेटिव इशू के बारे में बात करेगा, वो भी हार जाएगा. तो जो मैंने कहा ना, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस अमंग्स देम. नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वुड वांट द डिस्कोर्स टू एक्चुअली कम हियर. तो डिस्कोर्स पूरा यहां चला गया और उनमें से कोई ये नहीं चाह रहा है कि डिस्कोर्स वापस यहां आए. तो वो सीडो इश्यूज के मार्केट में ही या फील्ड में ही पूरा डिस्कोर्स हो रहा है और हम सब उससे अफेक्टेड. मतलब जाहिर बात है, पीपल ऑफ द कंट्री विल हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इट बिकॉज एवरीवेयर इट इज इमोटिव इश्यूज व्हिच आर देयर इन द इलेक्टोरल एरिना. और हम सब इतने इनसिक्योर हैं कि हम उसमें फौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो वी डोंट यूज आवर रैशनैलिटी, वी कांट एक्चुअली यूज आवर रैशनैलिटी, वी कांट अफोर्ड टू यूज आवर रैशनैलिटी. वी आर इमीडिएटली टेम्प्टेड when these issues come before us, and political parties are very happy also because they actually don't need to do anything. उन्हें करना क्या है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में आपका कास्ट और रिलीजन का कैलकुलस सही होना है. आपको एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ नहीं करना है क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि कुछ हम करें. बात समझ रहे हैं? वो ओपनली कहते हैं हमें कोई, अच्छा आपको भी नहीं फर्क पड़ता. जैसे अगर कोई कहे फला पार्टी में बोले क्रिमिनल्स को टिकट दिया तो हमें पता है कि हम क्रिमिनल्स को टिकट दें या ना दें, आपको उससे मतलब ही नहीं है क्योंकि आप तो उस आइडेंटिटी पे जा रहे हैं जिसको मैं प्ले आउट कर रहा हूं इलेक्टोरल एरिना. तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता. हम जिसको भी टिकट दें, अगर हम आपसे सही कनेक्ट एस्टेब्लिश कर चुके हैं तो आप उस आइडेंटिटी के बेसिस पर हमें वोट्स देंगे एंड इवेंचुअली वी आर गोइंग टू विन द इलेक्शन. सो देयरफॉर दैट इज a major problem, because of which we are in this. It's not the only issue, but that is, I just will flag a few points for your consideration. दूसरी एक और बात ये इसके बाद कि हम सब इतनी आसानी से क्यों टेम्प्ट हो जाते हैं. मतलब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो वो लगता है सब कम्युनलिज्म की बात कोई कर रहा है तो क्यों इतना टेम्पटेशन हो गया, कास्टिज्म से क्यों इतना टेम्पटेशन हो गया, इतनी आसानी से पढ़े लिखे लोगों का और ज्यादा हो गया, क्यों हो गया? उसके बहुत से रीजन हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है, टू माई माइंड, इट इज द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज of citizens, which has a very close relationship to the process of nation building in a country. Now, आज तो nation building का बड़ा different connotation हो गया. In the real sense, nation building is that when we truly become a nation. What is a nation? It is a psychological, it is an emotional connect we all have with each other when we all identify primarily as citizens of country A, that is India. So India is my country. And despite all differences of religion, of caste, of region, of language, we all identify with each other as Indians. So when nation building actually takes place in a country or reaches to a satisfactory level in any country, we all are supposed to be, as citizens, supposed to be having our primary identity as Indians. That should be the primary identity. Every other identity, जब आप citizenship की सिर्फ बात कर रहे हैं, बाकी सारी आइडेंटिटी उसके बाद आनी चाहिए. मतलब जैसे हमारी सबकी कई आइडेंटिटीज हैं, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, जेंडर आइडेंटिटी है, कास्ट आइडेंटिटी है, रीजनल आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, क्लास आइडेंटिटी है, सारी है, फाइन. बट दे ऑल हैव टू कम एट नंबर 2, 3, 4, 5, 6. कोई कहीं भी हो, कोई परेशानी नहीं. नंबर 1 पे एज ए सिटीजन योर नेशनल आइडेंटिटी शुड बी देयर इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. एंड दैट process has to a great extent rather happened in most countries towards which we look up as, that they are better placed as compared to us in this process of nation building. हमारे मुल्क में या हमारे जैसे मुल्क में
अभी वो प्रोसेस इस लेवल पे आई कि हमारे यहाँ आइडेंटिटी प्रायोरिटाइजेशन में जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, सिटीजन्स, वो ऊपर के लेवल पर ज्यादातर नहीं आए। हम सब की दूसरी कोई और आइडेंटिटी ऊपर है, नेशनल आइडेंटिटी इंसिडेंटली कहीं और है। बात समझ में? वो नेशनल आइडेंटिटी है सिटीजन, वो कहीं और है, वो ऊपर के लेवल पर नहीं है। उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि व्हेन द नेशनल आइडेंटिटी इज प्राइमरी एंड व्हेन यू आर एक्टिंग इन द पब्लिक स्फीयर, जो हम जहां से बात शुरू हुई थी, तो व्हाट हैपेंस दैट प्राइमरली द ग्लासेस व्हिच यू आर वियरिंग आर आइदर नेशनल ग्लासेस और कम्युनल ग्लासेस और कास्टिस्ट ग्लासेस और रीजनल ग्लासेस और एनी अदर सच ग्लास व्हिच इज बायस्ड। तो होता क्या है कि जब एज ए सिटीजन हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी नेशनल हो जाती है या इंडियन आइडेंटिटी होगी इन द डिस्कोर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पब्लिक स्फीयर में एक्शन है वो रैशनल होगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू rather argue is that the national identity is necessarily rational and all the other identities are necessarily non-rational. How? देखिए ऐसा है कि जब मेरे आंखों पर कम्युनल आइडेंटिटी होती है, मतलब आई एम टॉकिंग वेरी ओपनली, मतलब नॉट एक्यूजिंग एनीवन, वी आर ऑल इन द सेम बोट। जब मेरी आंख पर कम्युनल आइडेंटिटी होती है तो उसमें क्या होता है कि जब मैं एक इंटरव्यू में जाता हूं और मेरे सामने 4 लोग बैठे होते हैं और एक शख्स मेरे मजहब का मुझे मिल जाता है जो इंसिडेंटली सबसे खराब है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसका अपॉइंटमेंट करूं और मुझे कोई गिल्ट नहीं होता, बल्कि मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं। और फिर मैं अपने जैसे दूसरे 3 लोगों को आगे बताता हूं कि आज मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि मैंने एक आदमी को अपॉइंट कर दिया जो मेरा अपना आदमी था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली विद द कास्ट आइडेंटिटी और रीजनल आइडेंटिटी, विद लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, और फाइनली इंडिया में करप्शन है, ये पैसा वैसा मिल गया तो कर ही देंगे उसका, वो तो अपनी जगह ही है। जब नेशनल आइडेंटिटी प्राइमरी होती है तो उसमें तो कोई इस तरह का बायस नहीं है ना। द प्राइमरी थिंग आप समझे कि साहब आई एम डूइंग समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ माई कंट्री, फॉर एग्जाम्पल। सो व्हेन आई गो एंड लुक एट 4 पीपल, मेरे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं, मेरी समझ से जो सब अच्छा होगा, हो सकता है मेरा जजमेंट सही ना हो, बट आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट हियर और इन एनी अदर मैटर विच इज माई कंडक्ट इन द पब्लिक स्फीयर। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया टीचर्स वाला, लेकिन बाकी कहीं पे भी हम पब्लिक स्फीयर में जो है तो वही काम करेंगे जो सही है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, यू नो, दिस इज व्हाट इज द लॉजिकल रैशनल थिंग। तो कहने का मतलब यह कि जब हमारी नेशनल आइडेंटिटी प्राइमरी होती है तो हम यूजुअली रैशनल आउटलुक से उस चीज को देख रहे होते हैं जो हमारा काम है, जो भी काम एट हैंड है, जो भी हमें करना है। दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग, यू नो, इट्स वेरी क्लियर। बट वंस some other identity is primary, what usually happens with all of us, that we are guided by some non-rational consideration usually, and that is something which promotes, you know, this disruptive tendencies in the country. और इसी वजह से क्या होता है कि मेरी आंखों पर क्योंकि ऑलरेडी वो चश्मा है नॉन रैशनल, तो जब कोई एक्टर यहां से उसको उस इश्यू को उभारता है या उसको एड्रेस करता है, तो द कनेक्ट इज वेरी इजी एंड स्ट्रॉन्ग because that is already there. बात समझ रहे? जैसे कि बहुत से लोग हमारे मुल्क में आज आर्ग्यू करते हैं कि साहब इस वक्त पिछले कुछ सालों में कम्युनलिज्म मुल्क में बहुत बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनलिज्म पहले नहीं था, इट वाज ऑलरेडी देयर, यू नो, दैट कम्युनल वायरस वाज ऑलरेडी देयर हियर। व्हाट यू एक्चुअली डिड इज एक्टिवेटेड दैट वायरस। वो वायरस पहले से था, यू जस्ट स्क्रैच द सरफेस एंड यू गॉट टू सी व्हाट वाज एक्चुअली देयर। सो ऐसा नहीं कि रातों रात हम लोग कम्युनल बन गए या कुछ लोग इंडिया में बहुत फासिस्ट बन गए, वो सारी चीजें पहले से थी। किसी ने सही से उनको एड्रेस कर लिया, किसी ने एक सही कनेक्ट एस्टेब्लिश कर लिया, किसी ने ऐसा एम्प्टी सिग्निफायर सामने रख दिया जो कि बड़ा अट्रैक्टिव था, फौरन वो चीजें सामने आ गई और वी आर सीइंग अ वेरी अगली सिचुएशन in front of us. So primarily, to my mind, this is another very important issue whereby our prioritization of identities is something which is creating a problem for us as far as progressing towards better integration in the society is concerned. Of course, there are other factors also. I agree that the media is there, which is doing all kinds of havoc. मतलब वो सारे instruments हैं जो मीडिया इस तरह की चीजें कर रहा है, या कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उसको मतलब इस तरह का एक माहौल को विशिएट कर रहे हैं। बट
they are rather doing their own their job. But the point basically is that these are issues because of which it is very easy for political parties or political actors to create such a divisive situation in the country and to aggravate it. अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज और डेंजरस चीज जो मेरी समझ से है, जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं कि साहब वी शुड टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स और मुल्क के माहौल को अच्छा करना चाहिए और नेशनल इंटीग्रेशन क्रिएट होना चाहिए और एमिटी बननी चाहिए. प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि इसमें इस पूरी सिचुएशन के सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जिनके लिए सिचुएशन आइडियल है बिकॉज दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग. But suppose tomorrow the discourse in our country shifts from there to here, how difficult it will be for these actors, because then they will have to perform. आप देखें कि ये टेम्पटेशन जो है वो हर जगह होता है. The classic example is America under Trump. मैं अमेरिका जैसा मुल्क जहां लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी बड़ी अच्छे शेप में है और डेमोक्रेसी सबसे अच्छी डेमोक्रेसी दुनिया की है, जब वहां ट्रंप आए तो क्या हुआ? ट्रंप ने पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज कर दिया. तो ये सिचुएशन कब उभरती है? जब, जैसे मैंने पहले बताया था, जब जहां स्कैरसिटी होती है. हमारी पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी है परपेचुअली. अमेरिका में क्या हुआ कि 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ. और देखिए, अमेरिका जैसे प्रॉस्पेरस कंट्री में, जो दुनिया का रिचेस्ट कंट्री, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, दैट वाज एन आइडियल सिचुएशन फॉर अ पर्सन लाइक ट्रंप टू प्रॉस्पर एंड कम टू पावर. What did Trump do? Exactly what people in India are doing. He told Americans that you are getting jobless and your jobs are being taken by these foreigners, Indians and others. तो उसमें क्या हुआ कि अब देखिए, इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग. कितना सेटिस्फाइंग ये बात होती है जब आपसे कहा जाए कि आपकी गलती जो है वो किसी और की गलती है. हम आप देखें ना, आज माँ बाप को कितना, अकबर साहब विल अप्रिशिएट मोर वो साइकोलॉजी के आदमी, जब पेरेंट्स को जब ये समझ में आता है कि हमारा बच्चा फेल इसलिए हुआ कि बच्चा खराब नहीं है, टीचर खराब है. और आप देखें कि यूनिवर्सिटी लेवल तक पे टीचर से बच्चे, पेरेंट्स बात करने आ जाते हैं कि सर वो फला टीचर ने ये किया, मतलब टीचर की गलती है, बच्चे की नहीं है. क्योंकि कितना अच्छा लगता है जब हम ये फील करें कि हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है, टीचर में कमी. उसी तरह कितना अच्छा लगता है उस जाहिल अमेरिकन को जो हाई स्कूल भी पास नहीं है, उसको जब बताया जाता है कि नासा में तुम्हें जॉब मिल जाएगा जब इंडियंस को भगा देंगे. ये इंडिया में नहीं हो रहा था, ये अमेरिका में हो रहा था. आपने उनके कपड़े देखे होंगे, जो लोग कैपिटल हिल पे आए थे वो आज के जमाने के कपड़े तक नहीं पहने हुए थे. मतलब उनके जो उनकी जो अपीयरेंस था, कितने लोग वो 19th सेंचुरी में भी रह रहे थे. तो मतलब क्या हुआ जब उनको ये बताया गया कि साहब आपकी कोई कमी नहीं है, आप सबको जॉब मिल जाता, वो तो कमी इनकी है जो इमिग्रेंट्स आ गए हैं, और व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्राइव देम आउट. आज भी ट्रंप यही बात कह रहा है और आज भी उसकी पॉपुलैरिटी 40% से ऊपर है, क्योंकि वो बात कह रहा है जो आपके बिल को अच्छी लग रही है. मतलब आप देखिए ना कि इस तरह की सिचुएशन में ये पॉलिटिक्स कितनी अट्रैक्टिव होती है अमेरिका जैसे मुल्क में. और अमेरिका ही थोड़ी, अमेरिका में भी है, ब्राजील में भी यही पॉलिटिक्स है, जिसको सैमी सैमोआ एक स्कॉलर जिन्होंने एथनिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है, बेसिकली उन्होंने इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में दिया है. बट दैट इज वेरी वैलिड फॉर कंट्रीज लाइक इजराइल, of course, but India and Russia to a great extent, Turkey also, and then Brazil and so many other places, because आज पूरी दुनिया में ट्रेंड है, क्योंकि ये इतनी attractive politics where you don't need to do anything, you just have to make good speeches, attractive speeches, appeal to the emotions of the people, and people are with you and you get the votes. So it's so nice. तो अब देखिए कि ये कितनी खतरनाक चीज है कि अमेरिका तक में थी कि वहां पे इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रांग थे, प्रेस फिर भी फ्री थी, कितनी मुश्किल से मतलब दे वर एबल टू गेट रिड ऑफ ट्रंप एटलीस्ट टेम्परेरीली. अभी भी दे हैव नॉट फुली गॉट रिड ऑफ हिम, एंड दैट इज अ फिनोमेना एक्चुअली. इट्स नॉट वन पर्सन, बट इन कंट्रीज लाइक आवर्स इट्स अ रेडीमेड सिचुएशन, बिकॉज एवरीवेयर दोस स्कैरसिटीज आर देयर. स्कैरसिटीज और जो इनइक्वालिटी सोसाइटी के वो एवरीडे बढ़ती जा रही हैं, और उसमें इतना अच्छा मतलब इट्स एन आइडियल ग्राउंड फॉर सच पीपल टू rather hunt as far as their pursuit for political power is concerned. So my purpose basically was not to actually come up with all problems in the path of national integration. I was just trying to take up a few points and I flagged them before you for your consideration, that actually, sometimes we think that certain superficial measures, certain things which we will do in the society are going to do us a lot of good, but basically the problem is much deeper, because the people who can change things are the people who are the biggest beneficiaries of this problem, this situation, and they will never let it change so easily. वो उसको कभी भी चेंज होने नहीं देंगे, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा इसमें फायदा है. तो एक्चुअली चेंज तभी होगा जब लोग इस चीज को शायद कभी समझ पाए, that it is not in our interest, it is in somebody's interest, and we are being taken for a ride.
by the Pied Piper of Hamelin, जो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि इतनी सुरीली आवाज उसने बजाई कि सारे चूहे उसके पीछे जाकर नदी में डूब गए। तो एक्चुअली वही सिचुएशन है कि मतलब मुल्क का इंटरेस्ट और मुल्क का कंसर्न तो उसमें कोई इशू ही नहीं है ना, ये तो दूसरा इशू है। मतलब हियर सम पीपल आर ट्राइंग टू ग्रैब पॉलिटिकल पावर एंड अदर्स आल्सो ट्राइंग टू ग्रैब इट थ्रू द सेम मींस। So it's a very ugly situation where competition for political power is taking place in an arena which is only of pseudo issues and no real issues are being taken up. तो ये एक बड़ी difficult situation है. Of course, I don't want to end with on a very despondent note, but actually this is the situation, and as students of political science, as sir would know, our job is to just try to rather present the problem before you and what are the political rather dimensions of that issue, and for people to rather deliberate and think about that on that issue and try to rather understand the gravity of the situation, what the situation is like, and what rather our role as citizens can be. Because the most important thing is to reclaim your citizenship. Quite often we think that things will change. हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बदल जाएंगी, शायद आगे कुछ और हो जाएगा, अगले इलेक्शन में ऐसा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा या प्रोविडेंशियल इंटरवेंशन हो जाएगा, हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं। लेकिन थिंग्स विल ओनली चेंज व्हेन वी डिसाइड टू चेंज इट, बिकॉज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन दिस होल गेम आर द पीपल ऑफ द कंट्री. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर रोल एज सिटीजन्स, यू नो, बिकॉज सिटीजनशिप इज अ थिंग ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसी नहीं है किसी डिक्टेटरशिप में सिटीजन से इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकते, वो अपने घर बैठ रहे हैं, जो डिक्टेटर कहेगा वो करेंगे. डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का ही सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज पावर इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, यू नो. द मोमेंट समबडी हैज पावर, द फर्स्ट टेम्पटेशन इज टू मिसयूज इट. In a democratic system, it is the responsibility of the citizens, and the Constitution also enjoins upon you the responsibility to be eternally vigilant. The moment you sleep, people who are wielding political power are going to misuse it. So we have to be eternally vigilant, and we have to apply the brakes where need be. So unless we or all people of the country exercise their responsibility as true citizens, things cannot start to change. Well, that is the practical reality. So the change has to come from the grassroots, from the people, from the citizens of the country, whatever they would do. Because as I mentioned, temptation in every country is for politicians to sell you dreams and get votes. So you have to tell them, no, we don't want this, we want this. जैसे मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया कि Trump is selling you very ideal dreams, but they have nothing to do with reality. Other people are talking about real issues. So the people of the country are conscious enough to understand that we have to reject this attractive dream and we have to talk about the real issues of the country. तो ये लोगों को डिसाइड करना है कि हमको क्या चीज चाहिए या हमारे इंटरेस्ट में क्या है. Although it is a very difficult thing, but still, you know, unless we understand or we rather appreciate the gravity of the situation, things cannot begin to change. Thank you. अभी आपने असमार बेग साहब को सुना. बहुत बड़ा रेंज है. थॉट, एक्शन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, रिजल्ट्स, सबका एक मजमा है जो असमार बेग साहब ने आपके सामने पेश किया. इस सिलसिले में अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन, कोई सवाल करना हो तो यू आर वेलकम, प्लीज. मैडम लेडीज फर्स्ट.